Have you complete your problem numerical? So write down this numerical. A 60-degree set square of 125 mm longest side is to be at kept that longest side is in HP, making an angle of 30-degree with VP, and set square itself inclined 45-degree to HP. Draw projection of set square. So write down this numerical first. So who will tell from where we have to start? Below XY or above XY? Here one line is there, set square means surface. It is in itself is inclined at 45-degree to HP. Okay. The surface is inclined 45-degree to HP. So this means Below XY line. below XY. We have to draw from VP, that is below XY. Okay. So draw XY line. So we have to start from the from below XY. Now it is said that 125 mm longest side. Okay. In HP. In HP means likewise perpendicular to VP. It is in HP. Okay. So in HP, this is 125 mm. Then you have to draw a line of this 60 means this 30. ये 30 और ये 60, ये total 90 होता है ना. So exterior angle 30, interior 30 and this one is 60. तो ये इस तरह से और यहाँ से 30. तो ये आप ड्रॉ करो तो आपको ये सेट स्क्वायर जो आपके पास सेट स्क्वायर है ना वो बनाने का है हमको. So this is 125 mm. Okay, this 60 means this will be 30. Okay, so from this side, when you keep protector like this, you will mark 30 here, so automatically this will be 60. Okay, and you have to keep protector likewise. So if you mark here 60, you will get 30 automatically. So here it will intersect. So this will be your set square. So you draw this first. Okay, so 60-degree set square of 125 mm longest side. So this is 125 longest side because it is said that it is in HP. So that's why we have drawn this 125 mm likewise, and then 60-degree. So if you put the set square like this, so this angle is 30, this will be 60. Then if you put set square like this will be 60 and this will be 30. So you take it, it will intersect here.
So you complete this numerical, this one, this part. So this is your first, and this one user is your first drawing. You have to start from VP. Why we have started from VP? Because it was said that set square itself is inclined 45 degree to HP, means surface. So in plain numerical, we have seen whenever there is surface inclined 45 degree, if it is asked HP, you have to start from VP. So we have started our numerical from VP, below XY. So if it is over, we'll continue. Then what you will do, you have to project all the points and you have to draw a straight line here. Now this one point and this point. So these 2 points is A, B, C. So this will be okay. So this will be B dash by A and this will be C dash. The point which is far distance, you have to write it first, and the distance which is nearer, you have to write it afterwards. So in top view, you are going to see the entire set square. In front view, you'll get a line. Now it is asked that this line or this surface is inclined 45 degree to HP. So you have to draw a line this much. This much line you have to draw 45 degree. Okay, and you have to recreate all these points. So this one was B dash by A dash, and this point is C dash. And you can project it downwards, and you can project all these points. You will get a reduced shape set square. If anybody has doubt, they can ask me. No problem. सर फिर से एक बार बताइए स्टार्टिंग से। क्या 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 बोला? सर फिर से बताइए, वो 30 डिग्री 60 डिग्री वो नहीं आ रहा सर। ये 125 mm निकाला क्या पहले? हाँ निकाला। सेट स्क्वायर में जो प्रोटेक्टर है आपके पास, वो कैसे रखा? या ऐसे रखो, वो लाइन जो लाइन है 90 वाली लाइन, ऐसे इसको परपेंडिकुलर रहनी चाहिए. ये 90 है ना आपको प्रोटेक्टर पे, ये 90 है ना, तो ये ऐसे दिखना चाहिए परपेंडिकुलर. ऐसा रखा क्या? और तो यहाँ पे, हाँ यहाँ 30 डिग्री मार्क करो. यहाँ से 30 डिग्री वाला लो. ये 30 मतलब ये 60, तो ये पूरा 90 हो गया ना. ठीक है. एक लाइन ड्रॉ करो, एक से बड़ी लाइन ड्रॉ करो फ्रंट. दूसरा वैसे ही ये सेट स्क्वायर उल्टा रखो ऐसे, इस तरह से, जहाँ पे ये 90 आपको ऐसा दिखना चाहिए. यहाँ से आपको लेना है 60. ये 60 रहेगा तो ये 30 रहेगा, है ना. तो ये लाइन यहाँ कहीं तो भी इंटरसेक्ट होंगी. जो इंटरसेक्ट होंगी उस पॉइंट को उतना डार्क करो, बाकी का छोड़ दो. उसका नाम दे दो सी. जमा क्या? हाँ सर। So this is your first figure. From this we'll get this line in HP. Then we have to, this one is the third one where we are this inclined to 45 degree. This line we are redrawing it here, and then we are projecting it. So you will get these 3 points. So you will get reduced shape set square. Okay, so if it is over, we'll see, we'll take next the next figure.
So 60 degree set square, 125 mm longest side is so kept that the longest side is in HP. So longest side is in HP makes an angle of 30 degree. ये जो longest side है ना, ये 30 डिग्री का एंगल कर रही है. तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे? इस longest साइड जो है वो 30 डिग्री का, ये यहाँ से 30 डिग्री होगा ये वाला, ये जो है ना लॉन्गेस्ट साइड, देखो ये 30 डिग्री का एंगल कर रहे हैं. ये 30 डिग्री लाइन निकालो और ये सारे के सारे पॉइंट आपको प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे. और ये जो थर्ड नंबर की फिगर है, थर्ड, वो पूरे पॉइंट आपको कहाँ लेके आना है? वो आपको इधर प्रोजेक्ट करने हैं. ये जो पूरे पॉइंट्स है यहाँ से वो इधर पूरे प्रोजेक्ट करने हैं तरह से. ये जो ए और बी है वो एक्स वाई पे है, तो ए वाले प्रोजेक्टर पे ए मार्क करो, बी वाले प्रोजेक्टर पे बी मार्क करो. ये सी जो है इतने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे. तो सी के प्रोजेक्टर पे भी यहाँ से ये एक्स वाई लाइन है अपना, मतलब दिस इज योर न्यू एक्स वाई और x1 y1. ये जो है आपका x1 y1 है. ठीक है, तो ये जो सी का प्रोजेक्टर है यहाँ से इतना डिस्टेंस कंपास से लेके इस प्रोजेक्टर पे मार्क करना. डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस रहेगा. तो ये डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है यहाँ से, और यहाँ पॉइंटर रखना है. यहाँ पॉइंटर रख के ये लाइन पे आपको कट करना है. जैसे आप कट करोगे ये ज्वाइन हो जाएगा. डाउट है तो पूछो. हो गया सर. क्या क्या हो गया. हो गया? नहीं समझा. समझा. हो गया ना, बन गया पूरा? हाँ सर. ओके, गुड. Okay, so in projections of plane, you have to you should Sir? able to read the problem Sir? properly. हाँ, yes, बोलो. सी डैश वाली आर्क कैसे मारे? C डैश, ये वाला ना, C1 डैश, ये वाला पॉइंट. हाँ 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 C1. ये पॉइंट के लिए क्या करना है? ये जो पॉइंट है देखो C डैश, इसका ये देखो ये हाँ. डिस्टेंस है, तो आपको ना ये पॉइंटर यहाँ रखना है आपको, प्रोटेक्टर इसका क्या बोलते हैं उसको, कंपास का. और इतना डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लो. ठीक है, इतना डिस्टेंस लेने के बाद ये जो नया x1 y1 है ना, इसमें C1 का प्रोजेक्टर देखने का. C1 का प्रोजेक्टर कौन सा है? ये वाला. तो वो डिस्टेंस यहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ ट्रांसफर कर दो. यहाँ पे आपको ये नया C1 डैश पॉइंट मिलेगा, तो ये पूरा ज्वाइन कर दो. ठीक है, कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल रहता है ना, तो ये जो थर्ड नंबर का फिगर है आपका, मतलब एक्स वाई स्टेज 2 का अबाउ एचपी वाले पूरे के पूरे मेजरमेंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है. ठीक है, ये याद रखो. तो यहाँ पे ए डैश, A1 डैश और B1 डैश यहाँ पे क्यों दिया हमने? बिकॉज दे आर ऑन एक्स वाई लाइन, इसलिए हमने एक्स वाई पे लिया. तो A1 के प्रोजेक्टर पे A1 डैश लिया, B1 के प्रोजेक्टर पे B1 डैश लिया. बट C डैश जो है वो एक्स वाई लाइन से थोड़ा दूर है, तो इतना डिस्टेंस हमने कंपास में लिया, और ये सेम डिस्टेंस C1 के प्रोजेक्टर से ट्रांसफर किया और उसका नाम दे दिया C1 डैश. तो प्रॉब्लम को रीड करते आना चाहिए. हाँ, क्योंकि कैसा, ये तो मैंने सॉल्व करके दिया, लेकिन कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम आता है तो आपको समझना पड़ेगा पहले. तो मैंने टिप दी थी आपको, ये बताया था
कि जब भी सबसे पहले आपको जैसे कि यहाँ पे सेट स्क्वायर इटसेल्फ या सरफेस ऐसा लिख के रहता है तो वो पहले पढ़ने का। इट इज इंक्लाइन 40। हाँ बोलो बोलो ना। ठीक है, तो सरफेस इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी ऐसा दिया है, तो ये 45 डिग्री टू एचपी अगर है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट काय में बनेगा, पहले वीपी में बनेगा, इसलिए हमने स्टार्ट यहाँ से किया। पहला ये था, फिर इसको प्रोजेक्ट किया तो आपको लाइन मिली, देन उस लाइन को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, देन 45 डिग्री से इंक्लाइन किया, देन ये सारे के सारे पॉइंट नीचे प्रोजेक्ट किए एचपी के और ये वाले वीपी के दोनों के, तो आपको ये रिड्यूस शेप में मिला। देन बोला क्या गया था यहाँ पे कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 30 डिग्री का एंगल कर रही है वीपी के साथ। सो ये लॉन्गेस्ट साइड आप यहाँ से 30 डिग्री लो या यहाँ से लो, एक ही बात है, 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ की हमने और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने क्या किए, प्रोजेक्ट कर दिए। ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ये जो A1 डैश B1 डैश और C1 डैश पॉइंट मिले हैं ना, वो यहाँ से ट्रांसफर किए ये वाले लाइन के, है ना। बी डैश और ए डैश एक्स वाई पे है तो हमने B1 डैश और A1 डैश पॉइंट A1 और B1 प्रोजेक्टर से लिए और ये C डैश पॉइंट हमने ये डिस्टेंस यहाँ ट्रांसफर किया। ओके, सो विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल इफ इट इज ओवर। शैल वी मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल? हो गया मोस्टली, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो लगे तो। Okay, so we'll take next one. Draw the semicircle plate. Draw the semicircle plate of 80 mm diameter. एक semicircle plate है, पूरे सर्कल का आधा पार्ट होता है, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं, और उस सेमी सर्कल का डायमीटर 80 mm है, मतलब 40 mm का रेडियस हो गया। हैज इट्स स्ट्रेट एज इन वीपी। स्ट्रेट एज कहाँ पे है, वीपी में है, एंड इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी। अब हमारा न्यूमेरिकल शुरू कहां से होता है, द सरफेस ऑफ द प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वीपी। अब देखो ये उल्टा हो गया है ना, हर बार सरफेस एचपी में रहता तो हम लोग क्या करते, वीपी में डायग्राम बनाते। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सरफेस क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, वर्टिकल प्लेन के साथ। सो आपका पहला फिगर कहाँ बनेगा, एक्स वाई के नीचे के एक्स वाई के ऊपर, हाँ बताओ, above the xy. अबाव, बिकॉज सरफेस इज मेकिंग 30 डिग्री विद वीपी, तो सेमी सर्कल आपको एचपी में बनाना पड़ेगा, सेमी सर्कल, और लॉन्गेस्ट साइड जो है वो स्ट्रेट एज वो वीपी में है, इसलिए वो ऐसे स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, ये सेमी सर्कल इस तरह से आएगा। ठीक है, सो यस विल स्टार्ट। ये सेमी सर्कल बनाओ, सर्कल सर्कल जो है ना वो सर्कल बना लो लगे तो, और सिर्फ सेमी सर्कल वाला पार्ट डार्क कर लो, या इतना ही पोर्शन, ये 80 mm के लाइन बनाओ, यहाँ से 40 पे रखो और इतना आधा सर्कल आधा ड्रॉ करो, सेमी सर्कल इतना तो आ ही जाएगा आपको। ये 80 mm की लाइन है, इसका हाफ होता है 40, यहाँ पे कंपास रखो, इतना डिस्टेंस लो, रेडियस लो और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, और वो सेम डिस्टेंस आपको रखना है, और आपको यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करने हैं। पॉइंट कैसे मार्क करोगे आप, ये बीच में से लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे एक आएगा, है ना, तो यहाँ पॉइंटर रख के इधर मार्क करो, ये यहाँ मार्क करो, यहाँ पॉइंट रख के यहाँ मार्क करो, देन यहाँ रख के इधर एक आर्क मार्क करो, यहाँ रख के इधर एक आर्क मार्क करो, तो आपको ये पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ये पॉइंट्स के लिए क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है 40 mm वो कंपास में रखो, सेंटर रखो, ये यहाँ से इधर आर्क करो, यहाँ रखो, इधर आर्क करो, यहाँ रख के इधर आर्क करो, यहाँ रख के इधर आर्क करो। ओके, सो इतना रहेगा, उसमें आपको नंबरिंग देना है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश, तो आपको ये 7 पॉइंट मिलेंगे।
फिर से बताना डॉट को कैसे आर्क करते हैं। कंपास में इतना डिस्टेंस है 40 mm का, लिया क्या? यस सर। हाँ अभी देखो यहाँ रखो पॉइंटर, ये स्ट्रेट है ना, ये 4 नंबर पे यहाँ पे रखो पॉइंटर, रखा? हाँ तो बोलो, यहाँ पॉइंटर रखा हमने। यस यहाँ सर। पॉइंटर रखने के बाद एक इधर आर्क मार्क करो और एक इधर आर्क मार्क करो, हुआ? ओके। हाँ, ये होने के बाद पॉइंटर डिस्टेंस उतना ही रहेगा, पॉइंटर यहाँ रखो, हाँ पॉइंटर यहाँ रखो और इधर एक आर्क मार्क करो। ओके सर। सिमिलरली यहाँ रखो पॉइंटर और इधर एक आर्क मार्क करो। ऐसे डिवाइड करते हैं सर्कल को। ये हम लोग 8th-9th में पढ़ लिया होगा आपने। अभी आप उस दिन छुट्टी पे होंगे तो पता नहीं है ना, छुट्टी पे होंगे, सीएल पे होंगे तो बता नहीं सकते। अच्छा हो गया आप डॉक्टर नहीं बने, नहीं तो क्या होता कि आप पेशेंट आता तो आप क्या बोलते, अरे मैं उस दिन छुट्टी पी थी तो वो टॉपिक मेरा मिस हो गया था, है ना। तो सर्कल को डिवाइड कैसे करते हैं हम बचपन में पढ़ लिए, 8th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में पढ़ा दिया होगा हमको, तो आना चाहिए। ये बेसिक चीजें है बेटा, ये इंजीनियरिंग में आने से पहले आपको आना चाहिए सब चीजें, ठीक है। इट्स ओके, याद रखो बेटा इसको, ठीक है। थैंक यू सर। उसको नंबरिंग दे दो। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोजेक्ट करो नीचे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सारे पॉइंट प्रोजेक्ट करो और जितने पॉइंट्स आपको दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट पे दो है ना, तो यहाँ पे पहले 1 दूर है तो पहले 1 लिखो यहाँ पे, फिर 7 लिखो। इस तरह से यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको मार्क करने पड़ेंगे, 1/7, 2/6, 3/5 और ये 4, इस तरह से। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। जितने पॉइंट्स है सारे प्रोजेक्ट करो आप परपेंडिकुलरली, और XY लाइन पे मीट करेंगे वो। सारे पॉइंट्स को नाम दे दो, ठीक है। जो पॉइंट दूर है वो पहले लिखो, जो पॉइंट पास में वो स्लैश करके बाद में लिखो। ये 2 पहले है तो 2 पहले लिखो, 2/6, देन दिस विल बी 3/5 एंड दिस विल बी 4। सो मेक दिस लाइन एज डार्क। इतना भी आपने ड्रॉ किया ना तो 10 में से 2 मार्क्स मिल जाते कम से कम, 0 तो नहीं मिलेंगे। बट आपने अगर ये पूरा डायग्राम, मान लो ये आपको चालू करना था HP से और आपने अगर नीचे शुरू किया, पूरा ड्रॉ करने में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने स्टार्ट ही गलत किया। इसलिए स्टार्ट एकदम सही होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एक उसका हिंट बताया था। हिंट क्या बताया कि जब भी सरफेस रहता है, आपको ये पढ़ना है न्यूमेरिकल में, सरफेस क्या बोलता है। सरफेस अगर बोलता है कि इट इज मेकिंग सम एंगल विथ VP, तो स्टार्ट करो HP से। अगर यहाँ लिखा होगा HP तो स्टार्ट करो VP से। ओके, सो इट वाज रिटन in VP, so we have started from HP. So this was the first figure, then this was the second step. Now third step क्या आएगा, वो क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रेट एज है, ये स्ट्रेट एज है, नहीं वो तो हाँ, ये सरफेस कितना एंगल से, हाँ ये सरफेस कितना 30 डिग्री से। तो अभी ये आपको यहाँ से 30 डिग्री का एक एंगल लेना पड़ेगा, 30 डिग्री का एक एंगल लेना पड़ेगा इस तरह से। और ये जो लाइन है, ये सेम लाइन यहाँ पे रिक्रिएट करो, सेम लाइन यहाँ रिक्रिएट करो, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे ये पॉइंट मार्क करते जाओ। ये जो लाइन आपने बनाई है यहाँ पे जो दिख रही है XY लाइन पे, ये सेम लाइन 30 डिग्री से यहाँ बननी चाहिए। इतना लाइन पहले बना लो, ये कंपास से पूरे डिस्टेंस मार्क करते जाओ। यहाँ से इतना डिस्टेंस यहाँ मार्क करो, देन 1/7 से 3/5 तक का डिस्टेंस 1/7 से मार्क करो, देन 1/7 से 4 तक का डिस्टेंस यहाँ मार्क करो और इतनी लाइन डार्क करो। उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं सारे प्रोजेक्ट करो, इधर से भी पूरे पॉइंट प्रोजेक्ट करो, सभी पॉइंट्स। और पूरे पॉइंट्स जहां जहां पे इंटरसेक्ट होता है, 1 के साथ, देन ये 2 के साथ, देन ये 3 के साथ, ये 4 के साथ, देन ये 5 के साथ, 6 देन दिस 7 तो इस तरह से आएगा। इसको आपको ज्वाइन करना है स्मूथ कर्व से, है ना। एक फ्रेंच कर्व मिलता है मार्केट में, या अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप फ्री हैंड से भी कर सकते हो, या फिर आपके पास जो सेट स्क्वायर है ना, उसके अंदर देखो अजीब से शेप बने हैं जहां प्रोटेक्टर नहीं है दूसरे वाले सेट स्क्वायर में, तो वहां से भी आप ऐसे स्मूथ कर्व बना सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व। उसको प्रॉपरली रख के धीरे 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 एकदम स्मूथ आना चाहिए वो।
या फिर अलग से भी फ्रेंच कर्व आप खरीद सकते हो, बट वो सेट स्क्वायर में रहते हैं, तो उसका यूज करके बराबर पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा, ऐसे बराबर ऐसे लगना चाहिए कि वो एरोडायनामिक शेप है, ठीक है, उस तरह से आप ड्रॉ करो। Okay, so this was our third step, and from this third we have drawn this fourth one. Okay. बन गया? कोई डाउट? ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको ड्राइंग शीट नंबर 5 में बनाने के हैं। कल 2 हो गए थे, आज हम 3 लेंगे, उसमें का 5वां एग्जाम्पल चालू है, सॉरी 4था एग्जाम्पल, 5वां अभी इसके बाद लेंगे, 4th वन चालू है। हेलो, है ना सब लोग? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, मुझे लगा कि कट हो गया, पता नहीं कभी कभी कट हो जाता है ना, वो अपन रहते बड़बड़ करते उधर सब बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा रिएक्शन देते जाओ। यस, अभी क्या करना है हमको? वी हैव टू ड्रॉ दैट स्ट्रेट एज इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू एचपी, 45 डिग्री टू एचपी। ये जो स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट एज 45 डिग्री टू एचपी है, तो ऊपर जगह चाहिए 45 डिग्री टू एचपी। तो ये सारे पॉइंट्स अभी ऊपर आएंगे इस तरह से, क्योंकि हर बार हम लोग इधर बनाते हैं, लेकिन अभी इस बार स्टार्ट ही हमने एचपी से किया। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट्स प्रोजेक्ट करो, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाले 3rd नंबर के, ये पूरे के पूरे आपको यहाँ ट्रांसफर करने हैं। ये पूरे डिस्टेंसेस 1/7, 2/6, 3/3, 3/5 और 4, ठीक है। तो ये सभी नाम यहाँ पे दे दो प्रॉपरली, और अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है आपको। प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? पहले 1 और 7, देखो ये 1 और 7 कहाँ पे? एक्स पे, एक्स वाई पे है। तो हमारा ये क्या हो गया? ये नया एक्स वाई हो गया, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग x1 y1। दिस इज आवर न्यू x1 y1। So what we are doing now, this 1 and 7, this point are on xy, तो ये सेम पॉइंट आपको x1 y1 पे बनाने का है। तो 1 मतलब जो 1 का प्रोजेक्टर जहाँ पे जाके टच हो रहा है x1 पे, वहाँ पे नाम दे दो 1 1 डैश। और ये 7 की जो लाइन है, देखो ये 7 की लाइन ऐसे आनी चाहिए, जहाँ पे टच होगी वहाँ पे नाम दे दो 7 1 डैश। तो आपको ये 2 पॉइंट तो मिल गया है। अभी आपको बनाने का है 2/6। तो ये इतना डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इतना डिस्टेंस है ना, आपको कंपास में लेना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट बनाने का है? 2। तो ये 2 पे रखो पॉइंटर यहाँ पे, और यहाँ से इतना कट करो। कितना डिस्टेंस? ये वाला, दिस मच डिस्टेंस 2 पे किया। सिमिलरली वो 6 पे भी करना है। 6 की लाइन कौन सी? ये 6 की लाइन। तो आपको रखना है पॉइंटर यहाँ पे, और वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी कट करना है। ये हो गया आपका 6 1 डैश। तो हमने 1 7 2 6 ये 4 पॉइंट बना लिए। अभी क्या करना है हमको? 3 और 5 ये 2 पॉइंट बनाने के। तो अभी डिस्टेंस लेना है आपको, पॉइंट रखना है यहाँ पे, और डिस्टेंस लेना है आपको इतना डिस्टेंस। ओके, सो ये है 3 और 5 के लिए। तो 3 की लाइन देखना है यहाँ पे, 3 की लाइन ये है, यहाँ पॉइंटर रखो, ओके, और यहाँ पे कट करो। तो ये हो गया 3। ऐसी 5 की लाइन कौन सी है? ये 5 की लाइन है, 5 पे करो और यहाँ पे कट करो, ये आपको 5 मिल गया। और आखिरी का पॉइंट है 4। 4 के लिए यहाँ पे रखो पॉइंटर, इतना डिस्टेंस रखो, और ये 4 का जो प्रोजेक्टर है ना, यहाँ पे पॉइंटर रख के ये सेम डिस्टेंस कंपास में लिया वो ट्रांसफर कर दो इधर में। तो ये हो गया आपका 4 1 डैश। तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी सारे के सारे पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने हैं स्मूथ कर्व से। तो इस तरह से वो बनेगा।
हो रहा है क्या? हो रहा है ना? हो गया? हो गया सर। वैसे बना क्या? सेम? मैंने तो बिना मेजरमेंट के जी। बनाया है ना, इसी तरह से आएगा। 6 पॉइंट सबसे बाहर है, थोड़ा अंदर 5 है और एकदम अंदर 7 है, तो नोज जैसा सिंबल बन रहा है ये। ये आपको डबल से ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। हो गया सबका? शैल वी टेक नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर लेता हूँ। इसको लिख के रखो यहाँ पे, ट्रांसफर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कर रहे हैं वो सब नोट करके लिखो, तो रहेगा नहीं यहाँ से पहले क्या बनाने का वो याद नहीं रहेगा। ओके, तो ये हमारा, ये सेकंड था, ये थर्ड फोर्थ और ये फाइनल फिगर, और ट्रांसफर किए हमने डिस्टेंसेस यहाँ से। ओके, सो वी आर ट्रांसफर डिस्टेंस। यानी अगर आप सपोज प्रोजेक्शन यहाँ से लेते हो तो डिस्टेंस यहाँ से ट्रांसफर करो, प्रोजेक्शन यहाँ से लिए तो डिस्टेंस वहाँ से, मतलब अपोजिट में करने का। ओके, सो विल टेक लास्ट एग्जांपल। सो इन लास्ट एग्जांपल, अ रेक्टेंगुलर प्लेन 40 by 60 mm, एक रेक्टेंगुलर प्लेन है 40 by 60 mm, साइड्स अपीयर अ स्क्वायर ऑफ 40 mm इन टॉप व्यू। यहाँ पे क्या है, टॉप व्यू दिया है आपको, है ना, 40 mm का टॉप व्यू आपको दिख रहा है एज अ स्क्वायर। पहले रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का वो स्क्वायर बन गया है। वो बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ड्रॉ करो और वो कितने डिग्री का इंक्लाइन करने के बाद वो स्क्वायर बनता है वो आपको ड्रॉ करना है। मतलब इसमें आपको क्या बोलते हैं, ट्रू शेप दिया है ना, और आपको दिया है टॉप व्यू, तो आपको इंक्लिनेशन निकालना है। बहुत सिंपल एग्जांपल है। सो ड्रॉ एक्स वाई लाइन फर्स्ट। सबसे पहले आपको, क्योंकि इट अपीयर्स टॉप व्यू 40 mm टॉप व्यू, तो ये टॉप व्यू कहाँ बनेगा, यहीं पे बनाएगा, है ना। तो दैट्स वाई इसकी जो फिगर है ना ये भी ऐसी बनेगी, ये इंक्लाइन यहाँ रहेगा तो यहाँ पे आपको टॉप व्यू बनेगा। सो रेगुलर जो है 60 by 40 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो आप एक्स वाई के नीचे, देन उसको प्रोजेक्ट करो, नाम दे दो ABCD, प्रोजेक्ट करो, उसका नाम लिख दो B' by A', D' by C'। अभी हमको क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट करके यहाँ पे एक आपको स्क्वायर बना लेना है, 40 mm दिया ही है, स्क्वायर बना लेना है। और स्क्वायर बनाने के बाद, है ना, स्क्वायर बना लेना है, उसके बाद ये पूरे पॉइंट प्रोजेक्ट करके आपको लाइन बनानी है।
प्रोजेक्ट करके, तो ये इंक्लिनेशन आपको निकालना है कितना है, ये ऐसा रहेगा पूरा कंप्लीट। ड्रॉ कर लो, एकदम सिंपल है। पहले ये बनाओ, देन ये, देन थर्ड नंबर पे ये बनाओ। ये कितना mm है, 40x40 स्क्वायर है ये बनाने के बाद ये लाइन प्रोजेक्ट करो। ये कहीं ना कहीं, ये प्रोजेक्ट करने के बाद, है ना, ये प्रोजेक्ट करो, और ये जो लाइन है, ये लाइन इतना डिस्टेंस लो यहाँ पे, और यहाँ पे ये लाइन पे मार्क करने का, तो आपको ये मिल जाएगा। हर बार ये दिया रहता है सरफेस इंक्लिनेशन, इस बार सरफेस इंक्लिनेशन दिया नहीं है, तो ये एंगल कितना है ये आपको गिनना है। हाउ मच इज द एंगल, आपको गिन के मुझे बताना है। तो दिस वन इज द फोर्थ फिगर, है ना। पहले हमको ड्रॉ करना है रेक्टेंगुलर प्लेन, डायमेंशन इज गिवन 60x40, देन उसको प्रोजेक्ट करो, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। देन इट इज गिवन दैट सरफेस इंक्लिनेशन नहीं दिया है, बट उन्होंने टॉप व्यू दिया है। हर बार सरफेस इंक्लाइन दिया रहता है और उससे हम टॉप व्यू बनाते हैं, और यहाँ टॉप व्यू दिया है 40x40 का, तो पहले टॉप व्यू बना लो। फिर ये सारे के सारे पॉइंट, ये सारे में 2 ही पॉइंट है, प्रोजेक्ट करो, दोनों लाइन प्रोजेक्ट करो। पहला तो XY पे रहेगा, दूसरा कैसे मार्क करेंगे ये वाला, उसके लिए ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, B1 डैश A डैश D डैश C, B डैश A डैश D डैश C डैश, ये डिस्टेंस कंपास में लेना है आपको, ये वाला डिस्टेंस कंपास में लेना है आपको, और पॉइंटर रखना है B डैश A डैश पे, और ये जो प्रोजेक्टर की लाइन है ये D डैश C डैश की, यहाँ पे आपको मार्क करना है और यहाँ ज्वाइन करना है, और ये एंगल कितना है इंक्लाइन वो गिन के मुझे बताना है। सो दिस इज योर 5th न्यूमेरिकल। ये आपको ड्राइंग शीट में ये 5 न्यूमेरिकल्स ड्रॉ करना है। शीट का नाम रहेगा प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन। ड्राइंग शीट जो है ना, आपको ऐसी ड्राइंग शीट लो जिसमें नेम प्लेट दिया रहेगा, राइट, और नीचे बॉटम में नेम प्लेट दी रहती है। बिना नेम प्लेट वाली लोगे तो आपको नेम प्लेट बनाना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट है। सो रेडीमेड नेम प्लेट वाली मिलती है ड्राइंग शीट्स, उनको पूछ लो, ठीक है, और नेम प्लेट वाली लो। अपने कॉलेज के नेम की होंगी तो और ही अच्छा, कॉलेज के नेम की भी मिलती है कभी कभी। और ड्राइंग शीट जब भी आप ड्रॉ करोगे तो 5 mm का जैसे ड्राइंग शीट है, पहले आपको इधर में, है ना, 5 mm ये पूरा छोड़ना है इसको, 5 mm यहाँ से डिस्टेंस, 5 mm यहाँ से डिस्टेंस। तो यहाँ पे पहले एक आपको बॉर्डर बना लेनी है पेंसिल से ऐसी, ठीक है। और आपका नेम प्लेट यहाँ रहेगा, ये नेम प्लेट वाली लेना 8 मिनट, और इतने एरिया में आपको ड्राइंग ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे नेम प्लेट रहेगा, यहाँ पे रहता ऊपर शीट का नाम रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, फिर यहाँ शीट का नाम रहेगा, यहाँ पे रहता है डेट रहेगी, डेट ऑफ गिवन और डेट ऑफ सबमिशन, और इधर रहती है सिग्नेचर हमारी, साइन, जब हम चेक करते तो हम लोग यहाँ साइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ रहता है शीट नंबर, ऐसे ये रहता है। तो अगर आपको नेम प्लेट नहीं मिलती है तो मुझे बताओ, आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ नेम प्लेट, ठीक है। तो नहीं मिली। नेम प्लेट की नहीं मिली तो इतना नीचे का पोर्शन छोड़ देना। नेम प्लेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एनडी भट्ट की बुक अगर आपके पास है, मैंने वो दी थी नेम प्लेट, एनडी भट्ट की बुक दी थी PDF, आपके क्लासरूम में होगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, उसमें नेम प्लेट कैसे बनाते हैं, या फिर आप गूगल पे देख लेना, यूट्यूब में जाके नेम प्लेट ड्रॉ कैसे करते, वो दिया है, ठीक है। अदरवाइज एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डाल दूंगा मैं, मेरे पास फोटो है ना, मैं डाल दूंगा, ठीक है, नेम प्लेट का कोई प्रॉब्लम नहीं। और रेडीमेड मिलता है तो बहुत बेटर है सर। वो एक इसमें कितने ड्रॉ करना फिर भी? अगर सामने के भर गए तो पीछे ड्रॉ कर सकते हैं ना, आगे पीछे। ओके। अब वो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले इसमें 3, वो देखो कैसे बैठते हैं, डायमेंशन थोड़ा सा पहले प्लानिंग करो प्रॉपरली, ऐसे काट पीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे 5 होंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में आना चाहिए, पहले आप 5वां भी ड्रॉ कर सकते हो, बराबर है कि नहीं। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो लिखा है ना, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे एक 5 mm के इसमें, ये ऐसे हाथ से नहीं लिखना है, ऐसे स्केल से A, ये R ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ये पूरा लिखना है प्रॉब्लम और उसको ड्रॉ करना है नीचे,
ठीक है, तो दो बड़े वाले होंगे तो पीछे लो, छोटे होंगे तो आगे में ड्रॉ करो। अगर ज्यादा बड़े होंगे तो स्केल ले सकते, छोटा छोटा लेने सकते हो, मैंने ज्यादा बड़े दिए नहीं तो आराम से ड्रॉ हो जाएंगे वो। ठीक है, बट थोड़ा प्लान करो पहले, गिन लो, आपके पास स्केच बुक में रहता ही है तो देखो कितना बैठ रहा है, उतनी जगह देख लो वहाँ पे, उसके हिसाब से करो। एकदम ऐसे लेमैन जैसे मत करो, अभी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो आपको वो मेजरमेंट आना चाहिए, एक अंदाज आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर सपोज फिजिकल एग्जाम हुई और आपको ड्राइंग शीट में 6 न्यूमेरिकल ड्रॉ करने होते तो एक ही ड्राइंग शीट मिलती है, इसमें आपको प्रॉपर, तब तो आपको पता भी नहीं रहता ना ड्राइंग कैसे बनेगी। तो अभी तो पता है आपको कि कितना जगह है क्या है, क्योंकि यही सेम देना है, मैंने तो आपको नए वाले दिए ही नहीं, अननोन दिए रहते तो बहुत मुश्किल होता। सो आई हैव गिवन द सेम न्यूमेरिकल। हो गया, सिंपल बन गया। ये कितना इंक्लिनेशन आया, एंगल कितना आया? 47 60 डिग्री। 60 डिग्री सबका। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स अवर यूनिट नंबर 3। ठीक है, अपना यूनिट नंबर 3 खत्म होता है यहाँ पे। एक और न्यूमेरिकल है दिया हुआ, बट मेरे हिसाब से 5 इनफ है। ठीक है, 5 ही ड्रॉ करो, मैंने एक एक्स्ट्रा रखा था। हाँ सर, हो गया। हाँ, इनफ है इतना। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर।